नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम मेहुल ठाकुर है और कोविड-19 के इस अवेयरनेस के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा बीइंग पॉजिटिव इन टफ टाइम्स। तो ये जो सेशन रहने वाला है ये स्पेशली डेडिकेटेड है टू ऑल द किड्स एंड देयर पेरेंट्स, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि कोरोना के समय में बच्चों का जो है स्कूल जाना बंद हो चुका है, कॉलेजेस जाने सब बंद है और इसके कारण एक स्ट्रेस देखा जा रहा है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा। एंड वो घर पर रह रहे हैं, उनके ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं एंड उसके कारण जो एक उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है। उनकी आईज़ पे स्ट्रेस पड़ रहा है, उनको मेंटली स्ट्रेस है और वो फ्रस्ट्रेशन एक घर में बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएट होता दिखता है। सभी घरों में आजकल ऐसा चला हुआ है। तो इसी को लेकर आज का हम ये अपना सेशन करने वाले हैं एंड इसमें जो हमारी आज की गेस्ट है उनका नाम है रेशु अग्रवाल जी, जो कि मुंबई से बिलॉन्ग करती हैं और वो फाउंडर हैं ब्रेन वर्ल्ड की। तो चलिए मिलते हैं उनसे। पुणे एंड पुणे, ओके सॉरी, पुणे से बिलोंग करती हैं एंड चलिए मिलते हैं उनसे, बात करते हैं। लेट्स टॉक टू हर अबाउट व्हाट अबाउट हर वर्क एंड व्हाट इज ब्रेन वर्ल्ड। सो हेलो Thank you so मैम, much, वेलकम। Mehul. Thank you, dear. Thank you, Mehul and श्वेता, आपके इनविटेशन के लिए। और इतने छोटे से टाइम में हमने इतनी जल्दी इतनी सारी प्लानिंग कर ली। थैंक यू सो मच फॉर दिस। यस, सबसे पहले तो मैं पुणे में रहती हूँ। Actually, I Okay. am not from Pune. My name is Reshu Agrawal and I'm from Bareilly. That is Uttar Okay. Pradesh. That is Jhumka city. So I'm from that Okay. Jhumka Gira Bareilly ke bazaar mein. I'm from there, and Okay. from the last 3 to 4 years, yes, 4 years almost, I'm here in Pune. Almost about my career, I worked as teacher, coordinator, manager, vice principal, principal. So 20 years of my career is like journeys in 2 steps. I started my career. I was just 18 years old. I just completed my 18 years old and I started job as a counselor in somewhere in Bareilly, and then 5 to 7 years I was in Bareilly, and then in Delhi, in Bhopal, and now in Pune. And when I came to Pune, I wanted to start my career again back to in principalship and all, because when you are talking about principal, actually teaching is my passion. I love teaching. I love to be kids only. Being kids, it's like something. मतलब मेरे चारों तरफ अगर बच्चे हैं तो that is the best moment of my life. Is like मुझे उनके साथ बात करना, उनसे सीखने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरा ऐसा मानना भी है कि आपका सबसे बड़ा टीचर आपका स्टूडेंट होता है, आपके घर का जो खुद का बच्चा होता है वो होता है सबसे बड़ा टीचर। हम ऐसा, जो आपके गुरु हैं, जो आपके टीचर्स हैं, वो एक अलग चीज है, बट यस, आपके बच्चे आपके टीचर्स, आपके गुरु होते हैं। बस आपके अंदर उनसे मिलने वाली शिक्षा लेनी आपको आनी चाहिए, and your life will be sorted. तो ये सब करते करते when I came to Pune, because my husband is in bank actually, so we shifted because of his transfers. That was a reason कि being a wife I have to be with him every time. I quit my job, the previous one, and I started my job every time in a new city, a new start, new, everything was new. So when I came in 2016 here in Pune, there was a I was missing in only one thing, that was the language issue, because when I'm in Pune, Maharashtra, so I have to be at least learn Marathi, a basic Marathi, because as a principal chair, you are on an administrative chair, and you have to handle both type of parents, Marathi or non-Marathi. So if anybody will be, if I'm in a CBSE school and still parent is there who is only known as Marathi language, so how can I communicate with that person? So that was a reason somehow कि no, language is a big issue for me. So that was a reason I decided no, not possible for me to continue my job as a principal. So now next point is what I have to do. Problem is that I love only kids. और ऐसा मुझे लगता है ना, जैसे मुझसे कोई बात करे और क्या कर सकती हो, तो मेरे पास जवाब होगा बच्चों को पढ़ाने सिखाने और उनके बारे में बात करने के अलावा ना मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा वैसा था। That's really great. That was the thing, is actually समझ नहीं आ रहा था. Then I started my company, that is Brain World. So when I'm talking about Brain World is actually a company where we conducted practical competitions, practical experiments, practical competitions, practical activities related to science. Why? The reason why, because as a principal for 5 years in Bhopal, I learned one thing, that CBSE curriculum and ICSE curriculum, both are into only one thing, that is the theoretical part. Yes. उनके अगर आप सब्जेक्ट में जाकर देखेंगे तो
जो करिकुलम होता है ना वो आपका बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल होता है, और हम एग्जाम्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, बच्चे के लर्निंग पे फोकस करते हैं, उसके राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बट हम किस चीज को मिस कर जाते हैं, उसका रियल लाइफ का लर्निंग। आप मुझे बताइए, आप जितने भी अभी मम्मियां यहाँ पर ऐड हमारे साथ हमें बात सुन रहे हैं, कितने बच्चों के स्कूल में मंथली कोई भी ड्रिल होती है कि अगर आग लग जाएगी, फॉर एन एग्जांपल अगर आग लग जाए आज मेरे स्कूल में, सी हैपन, बुरी चीज कहीं पर भी हो सकती है, हैपनिंग इज एनीवेयर। तो अगर आज आपके बच्चे के स्कूल में आग लग जाए और कुछ हो जाए, आप में से कितने लोग मुझे ये कह सकते हो अभी कि नहीं हमारे स्कूल में तो भैया हर हफ्ते एक मंथली ड्रिल होती है जिसमें बच्चे को आग लगने से, भूकंप से, बाढ़ आने से, या किसी भी जो एक नेचुरल डिजास्टर होता है उससे बचाने का सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता है। एक जो सीबीएसई का रूल होता है और जो आईसीएसई का करिकुलम का रूल होता है, उसके तहत सरकार को दिखाने के लिए, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए एक बार साल में वो ड्रिल करवा दी जाती है। आपको लगता है क्या उस एक ड्रिल से आपका बच्चा तैयार हो जाता है उस बाढ़ से सामना करने के लिए? इज दैट पॉसिबल? आप में से कोई भी ऐसा बोल सकता है कि नहीं अरे उसने ड्रिल करी थी उसको आता है? पॉसिबल ही नहीं है। वो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे ये लगा कि नहीं ये चीजें मिस हो रही हैं, वहां हम प्रैक्टिकल कॉम्पिटिशन्स को लेकर आए। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि हम थ्योरी पे बात करते हैं, बट जब बच्चा रियल लाइफ में उतरेगा, रियल लाइफ में तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सीखनी है ना, वहां वो लिख कर नहीं कराने वाला, वहां वो मैथ्स के इक्वेशंस नहीं करने वाला है, वहां उसको रियल लाइफ में चीजें सीखनी होंगी कि अगर मेरे पास रिसोर्सेस कम है तो कम रिसोर्सेज में मैं किस तरीके से अपनी चीजों को सॉल्व कर सकता हूँ अगर मैं कहीं फंस जाता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर आपका बच्चे के पास, आजकल मोबाइल सबके पास है, अगर आपके किसी भी बच्चे को पता है कि अगर वो कहीं रास्ते में है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए और आसपास कोई दुकान ना हो, उसका चार्जर खराब हो जाए, उसके पास चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? कैसे आपसे कांटेक्ट करेगा? नहीं पता ना। 90% पेरेंट्स को नहीं पता है कि हमारे बच्चे को हम सिखा ही नहीं रहे। आप ज्यादातर लोग, मेरे ख्याल से आप लोग जहां से भी जुड़े हुए हैं, ज्यादातर सब लोग फ्लैट्स में ज्यादातर रहते हैं, बहुत कम एरियाज रह गए जहाँ पर सिंगल घर होते हैं। तो मैं आपसे कहती हूँ अगर आप लोग फ्लैट्स में रहते हैं, जो बिल्डिंग्स हैं 1 2 3 फ्लोर, अगर आपकी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो क्या आपने आपके बच्चे को स्कूल की तरफ से या आपकी तरफ से किसी ने ये सिखाया है कि अगर बिल्डिंग में आग लगती है तो तुम्हें लिफ्ट का यूज नहीं करना है और तुम्हें सीढ़ियों से ही जाना है? क्या आपने कभी उसकी एक बार उसे प्रैक्टिस करवाई है? क्या आपने उसे बताया है कि बैल्कनी की तरफ ना जाकर इस तरफ जाना है, ये यूज करना है? सीढ़ियों में भी, जब सीढ़ियों पे भी जा रहे हो तो दीवार की तरफ जाना है या लोहे के एंगल की तरफ जाना है? क्योंकि लोहे का एंगल आग की वजह से जल्दी गर्म हो जाता है और आग जल्दी गर्म होकर वो आपको जलाने की कोशिश करेगा। दीवार देर से गर्म होती है तो आपको दीवार की तरफ जाना है। दैट इज रियली ट्रू मैम। हाँ, क्योंकि ये सब चीजें मुझे अभी तक याद है हमारे सिलेबस में हुआ करती, डिजास्टर मैनेजमेंट में होती थी, बट इनको रियल लाइफ में डेली प्रैक्टिस करना या फिर मंथली प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है। आप सोचो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं ये आपको इसलिए एग्जांपल्स दे रही हूँ सो दैट आप मेरे ब्रेन वर्ल्ड को एक मतलब 5 मिनट में ब्रेन वर्ल्ड में समझा पाऊँ कि हम ये सब करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल इसको और दे देती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि क्या होता है कि जब आप इसकी बात करते हो, लिखा हुआ है, जब छोटा बच्चा एडमिशन स्कूल में लेता है तो हम उसको A B C D कितनी बार लिखवाते हैं? एक बार लिखवाते हैं बस? क्या प्रैक्टिस? मल्टीपल टाइम्स। तो डिजास्टर मैनेजमेंट मल्टीपल टाइम्स क्यों नहीं सिखाते हैं? हमें क्यों इतना श्योरिटी है कि वो एक बार थ्योरी पाए, पर जब आग लगेगी तो किताबें खोल के चेक करोगे? आप लोगों को याद होगा न्यूज़ देखियो, सूरत में सूरत नहीं सॉरी कोटा में एक अभी 1.5 साल पहले हादसा हुआ है। 22 बच्चों को, तो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो 22 साल के थे। वो बच्चे 22 साल के थे, 23 साल के थे, वो 6-7 साल के तो नहीं थे, और वो सब मर। क्यों? क्योंकि उन्हें आग लगने के बाद इतनी छोटी सी थ्योरी नहीं आती थी कि अगर आग लगते ही आप जमीन पे लेट जाएं और एक गीला कपड़ा अपने मुंह में लगा लें, जो आग का धुआं होता है वो जमीन से हमेशा 1 फीट ऊपर होता है। आग का धुआं कभी जमीन पर नहीं होता है। तो अगर आप लेट जाओगे जमीन पर अपना मुंह करके गीला कपड़ा लगाकर, तो आप बच जाओगे, सांस ऑक्सीजन ले पाओगे। इतनी छोटी सी बात हमारे स्कूल में सिखाई नहीं जाती है, और हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात करते हैं और एनईपी लाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर ब्रेन वर्ल्ड पिक्चर में आया। ये सब चीजों पे मैंने अपने स्कूल में ड्रिल्स बहुत करवाए थे, सब करवाया था। यहाँ आकर मुझे लगा कि ये तो कहीं पर भी नहीं होता है। तो इन सब चीजों को कराने के साथ प्रैक्टिकल कॉम्पिटिशन्स, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स पर मैंने फोकस करना शुरू करा, और हम इस वक्त पुणे में ऑलमोस्ट 150 स्कूल से ज्यादा जुड़े हुए हैं राइट नाउ। सेम हमने एक चीज और कराई, मोबाइल का प्रॉब्लम है, बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते हैं, ठीक है।
मेरे बेटे के साथ 4 साल का था ये प्रॉब्लम शुरू हुई. व्हाट आई स्टार्ट टू डू, मोबाइल में वो जो भी गेम खेलता था मैंने वो डाउनलोड करे हुए गेम्स को देखना शुरू करा और भी गेम डाउनलोड करके देखे और उनकी वर्कशीट्स बनाना शुरू कर. ओके, अब जब वो वर्कशीट में वो चीजों से मिलने लगी तो उसे मजा आने लगा. देन आई स्टार्टेड माई ओन बुक्स और अभी मेरे बुक्स ऑलमोस्ट, मतलब इस साल एक्चुअली वो अनाउंस करने थे और कोविड की वजह से रह गए, तो अब मेरे वो बुक्स 150 स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर से, जहां पर एक्टिविटीज आपके मोबाइल गेम्स के ही हैं. आपके बच्चे को वही चीज मिलेगी जो वो मोबाइल गेम में खेलता है, लेकिन सबसे पहले तो लर्न करने के सेंस में मिलेगी. अब में वो ऐसे हो जाता है ना, एक फिक्स हो जाता है मोबाइल, अब मुझे सिर्फ इसी में रहना है, भारतीय दुनिया में नहीं देखना है. जब वो ये चीजें आईज पे एक्टिविटीज बड़ा वर्कशीट इफेक्ट में पड़ता करेगा, है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, माइंड पे इफेक्ट पड़ता है. लेकिन जब वो ये चीजें वर्कशीट में करेगा ना तो फर्क पड़ता है सोच पर, उसकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी और आप उससे वर्कशीट बनवा भी सकते हैं. मैंने ये चीजें एक्सपेरिमेंट करी, जितने वर्कशीट के रूप में मैंने पहुंचाया. मैंने ऑलमोस्ट 6 या 7 अभी तक ये कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज करे हैं वर्कशीट्स वाले, एंड सक्सेस, इट्स अ ह्यूज सक्सेस. आई मस्ट से पेरेंट्स को ये बहुत पसंद आता है क्योंकि वो खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट हमारा बच्चा कुछ देर के लिए तो सही मोबाइल से दूर हो जाता है. सो दिस इज व्हाट द थिंग इज. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द ब्रेन वर्ल्ड इज. ओके ओके. सो मैम, क्वेश्चन एक और है कि व्हाट इज पॉजिटिविटी एज पर यू? This is what actually my lovely thing I love to share with every parent. ये जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, सी मेरे लिए किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप पैनिक नहीं होते हैं और पैनिक ना होकर उस प्रॉब्लम को, तो पता है, मुझे पता चल गया ना, मैंने भी आपसे पॉजिटिविटी और ब्रेन वर्ल्ड को आप कैसे जोड़ेंगे. देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, आग लग गई है, ठीक है, मैं पैनिक हो जाती हूँ, ये है नेगेटिविटी, और मैं पैनिक ना होकर उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढती हूँ, ये है पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी का मतलब होता है किसी भी स्थिति में अपने दिमाग को संतुलित रखकर, अगर आप उस वक्त उस प्रॉब्लम के बारे में ना सोचकर आप इस बारे में सोचते हैं कि इसका सलूशन क्या है, आप पॉजिटिव हैं. पॉजिटिविटी का मतलब भगवान की पूजा करना नहीं होता, वो स्पिरिचुअलिटी में आएगा. पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप ये सोच के बैठ गए हो कि मैं क्या बोलते हैं, सबसे अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, मैं सबकी तारीफ करता हूँ, मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाता. नहीं, ये पॉजिटिविटी में नहीं आएगा, ये ह्यूमैनिटी में आएगा. लोग बहुत कंफ्यूज है. मेरे अभी कुछ दिन पहले सेशन था, एक मैम ने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा कि ह्यूमैनिटी और पॉजिटिविटी का डिफरेंस क्या है. तो पॉजिटिविटी का मतलब होता है जब आपके सामने कोई भी मुसीबत आती है और आप उस मुसीबत को मुसीबत ना मानकर या तो चैलेंज मान लेते हैं और उसके सोल्यूशन पे फोकस करना शुरू कर देते हैं. यार प्रॉब्लम तो आ गई ना, प्रॉब्लम आ चुकी है, अब मुझे उस पर सोल्यूशन ढूंढना है. जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज पर पैनिक नहीं होना है और मुझे यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, आप खुद फील करेंगे कि आप पॉजिटिव हैं. सो when I'm talking about positivity, for me positivity is everywhere, it's in you. आपको सिर्फ उसे अपने से समझना है. yes, पॉजिटिविटी मतलब आप जब कोई भी काम करते हैं उसमें परेशानी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे एग्जाम्स में परेशान हो जाते हैं, ठीक है, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, तो एक आसपास पेरेंट्स का डर होता है, डांट पड़ रही है, ये है, तो ये हो गया नेगेटिव एनर्जी. नेगेटिव एनर्जी आ रही है. अब आप बात करेंगे पॉजिटिव एनर्जी आप बच्चा अपने अंदर कैसे लेकर आए. वहां बच्चे को ये तैयार समझना होगा, पेरेंट्स को ये समझना होगा कि उसको उतनी देर के लिए टाइम दीजिए, उसको उसकी देर बैठने दीजिए, उसे सोचने का मौका दीजिए और उसको ये समझने की कोशिश करने दीजिए कि उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वो किस टॉपिक को समझ नहीं पा रहा है जो वो पढ़ नहीं पा रहा है. अगर आप उस बच्चे का वो प्रॉब्लम समझ लेंगे तभी तो आप उसके सोल्यूशन. डॉक्टर क्या होते हैं, डॉक्टर आपको दवाई तभी तो देते हैं ना जब वो आपकी वो समझ लेते हैं प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है, और वो आपको सोल्यूशन दे देते हैं, आप ठीक हो जाते हैं. क्या है बीमारी, आपकी नेगेटिविटी है, और डॉक्टर जो आपको दवाई देता है वो आपकी पॉजिटिविटी है. सो सिंपल. आप किसी भी जगह ये देख सकते हैं, जब आप रो रहे होते हैं तो वो नेगेटिविटी होती है, जब आपको कोई हक कर लेता है प्यार से तो वो पॉजिटिविटी है. पॉजिटिविटी इज एवरीवेयर. आपकी किचन में रोटी जल जाती है और आप उदास हो जाते हो, वो नेगेटिविटी है. सोचते हो चलो कोई बात नहीं दूसरी रोटी बना लूंगी, ये पॉजिटिविटी है बिना पैनिक हुए. सो पॉजिटिविटी इज एवरीवेयर. इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड कि हर सिचुएशन में अपने आप को बिना असंतुलित हुए, बिना पैनिक हुए
अगर आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे फोकस करते हैं तो आप पॉजिटिव हैं। ट्रू मैम। एंड मैम, हाउ कैन वी इनकल्टिवेट पॉजिटिव थिंकिंग इन आवर किड्स? किड्स के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे हम निकाल सकते हैं, उभार सकते हैं? देखिए, बच्चों के लिए मैं एक बात बोलूंगी, जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं और यहाँ पे भी शेयर करेंगे, आई रियली विश कि एक बात एज अ पेरेंट हमें समझनी होगी, जब हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। आप जो बच्चों को बोलते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा बच्चे वो सीख रहे हैं जो आप कर रहे हैं। अगर अपने बच्चे के सामने हर सिचुएशन में, मैं आपको एक बहुत ही पारिवारिक इसका एग्जांपल दे सकती हूँ जिससे एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों में कल्टीवेट एक्चुअली करना कैसा है, कि करना है एज अ मदर, एज अ फादर, या एज अ दादा, या एज अ दादी। अगर आप घर में हैं और आपके परिवार में बच्चा कहीं खेल भी रहा है, एक बात मैं और यहाँ शेयर करूंगी इससे पहले, बच्चों के बारे में प्लीज ये कभी मत सोचिएगा कि अरे वो तो कमरे में बैठा है तो ध्यान नहीं, अपने गेम में मस्त है तो वो ध्यान नहीं देगा। They आपकी are सबसे very बड़ी sharp. गलतफहमी होती They are very smart, है। ma'am. बच्चे Nowadays, kids are very smart. वेरी शार्प, दे आर वेरी शार्प, मल्टीटास्किंग होते हैं। आपको लगेगा कि अच्छा वो तो अपना काम कर रही है, मुझे सुन नहीं रही है, तो चलो मैं किसी की बुराई कर लूं। मत कीजिएगा। True, वो आपको true, सुनते, true. वो आपको सुन रहे हैं, तो सबसे पहले बचपन में कहावत सुनते थे, क्या फिश के बच्चे को Don't आप स्विमिंग preach. करना सिखाते हो क्या? Yeah. फिश के बच्चे को यू कांट टेल फिश चाइल्ड टू हाउ टू स्विम, नहीं सिखा सकते ना। द सेम थिंग आपको समझना होगा कि आपको अपने बच्चे को पॉजिटिविटी कल्टीवेट करने के लिए आपको पॉजिटिविटी की तरह बिहेव करना होगा। वो अपने आप पॉजिटिव होता चला जाएगा, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। पॉजिटिविटी की कोई क्लास नहीं होती है। आज भी जब हम बात करते हैं तो जो मुझे सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। मैं इस वक्त किसी को इंडिविजुअल जाके लेक्चर नहीं दे रही हूँ कि नहीं तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, नहीं। पॉजिटिविटी, मैम इज राइटिंग, आई थिंक यू शुड टेक व्यूज ऑफ बुलबुल मैम to for child. Yes ma'am, definitely I love to listen from you. I will complete my sentence. मेरे लिए पॉजिटिविटी का जो मतलब है वो सिर्फ एक ये है कि आप बच्चे के सामने जैसा बिहेव करते हैं बच्चा वैसा लर्न करता है। आप अगर बच्चे के सामने किसी के साथ नकारात्मक बहुत ज्यादा है तो बच्चे के अंदर वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। आप बहुत ज्यादा सकारात्मक हैं तो बच्चा भी वैसा होता चला जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा हर छोटी छोटी बात में सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं तो आप देखेंगे 1-2 साल के बाद आपका बच्चा भी पैनिक हो रहा है। आप देखेंगे कि अगर आप हर बात को घर में शांति से आराम से सुन के समझते हैं, आप खुद देखेंगे कि आपका बच्चा बिल्कुल, क्योंकि हमारे बच्चे सबसे ज्यादा हमारे साथ रहते हैं। स्कूल का टाइम में वो ज्यादातर स्कूल की किताबों में बिजी होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तो जो जब हम ब्लेम करते हैं तो कुछ हद तक वो गलत है। हमारे साथ वो ज्यादा टाइम बिताते हैं, हमारे घर का माहौल ज्यादा डिपेंड करता है। एक और बात है पॉजिटिविटी के लिए, बच्चे जब सो रहे होते हैं तो जो लोग नहीं जानते हैं प्लीज वो स्लीपिंग, मेरे ख्याल से बुलबुल मैम इस साथ साइकोलॉजिस्ट उन्हें पता होगा, जो स्लीपिंग थेरेपी होती है वो जरूर प्लीज करिए अगर आप अपने बच्चे को बदलना चाहते हैं। स्लीपिंग थेरेपी इज अमेजिंग थेरेपी। बच्चे के सोने के 10 मिनट के बाद आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंस आई थिंक मिनट तक बोलना होता है। बच्चे के सोने के 10 मिनट बाद लगातार 21 दिन तक आप बोलिए, आप अपने बच्चे में वो डिफरेंस पाएंगे। मैंने प्रॉपर टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड एंड सक्सीड। फॉर एग्जाम्पल अमेजिंग थिंग बता सकेंगे? फॉर एग्जाम्पल इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी या किसी कोच की अंडर की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि सेंटेंसेस का भी बहुत बड़ा अफर्मेशन होता है। जैसे आप ये बोलते हैं आपको अपने बच्चे का नाम लेकर कि प्रिया आप बहुत इंटेलिजेंट है, प्रिया आप बहुत इंटेलिजेंट है, तो प्रिया के दिमाग को ये मैसेज जा रहा है सबकॉन्शियस माइंड में कि आप इंटेलिजेंट हैं, पर किस फील्ड में इंटेलिजेंट है वो तो माइंड को नहीं गया ना। तो फील्ड वो तो माइंड कुछ भी उठा लेगा, कुछ भी और वो मिक्स वो गलत। चॉइस ऑफ वर्ड्स मस्ट बी वेरी क्लियर कि आप उसके अंदर किस चीज का डिफरेंस किस चीज का बदलाव चाहते हो। कि प्रिया आप हिंदी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ पाती हैं, या प्रिया आप इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत अच्छी हैं। तो वो आपके वर्ड्स अफर्मेशन इज इट्स वेरी मस्ट, वेरी वेरी मस्ट कि आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बोल क्या रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझसे, वो कहते हैं ना नीम हकीम खतरे जान, बुलबुल मैम आप भी प्लीज सुनिएगा, मेरी उन्होंने मुझसे क्या किया, क्लास ले लिया, क्लास ले लिया और क्लास लेने के बाद उन्होंने मेरे से अफर्मेशन का सेंटेंस नहीं लिया और वो चली गई। और
20 21 दिन के बाद मुझे फोन करके गुस्सा करती है, मेरी लड़की तो बहुत शैतान हो गई है। ठीक है, मैंने कहा आपने क्या अफर्मेटिव दिया था? मैम उनका अफर्मेटिव था, अपनी बेटी का जो भी उनकी नाम था उस बच्ची का नाम लेकर कहती हैं कि तुम बहुत एक्टिव हो। Yeah, एक्टिव active इज in नॉट sports, active अफर्मेटिव in पढ़ेंगे studies or आपको। what? True. एक्टिव इन व्हाट सेंस? अब वो इतनी शैतान हो गई, इतनी शैतान हो गई कि हद से ज्यादा शैतान हो गई। वो मुझसे कह रही है वो बेड पे से कूद जाती है, सोफे पे से कूदती है। आई सेड यू टोल्ड हर एक्टिव। तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि वो नीम हकीम जान वाली चीज हम नहीं करेंगे। बुलबुल मैम प्लीज, आई वांट, आप बताइए मैं कितना सही और कितना गलत हूँ यहाँ पर। माइक मैम, आपका माइक बंद है। मैम माइक बंद है आपका। श्वेता मैम, नहीं मैम करेंगे। मैम प्लीज, बुलबुल मैम Yes, प्लीज please. अनम्यूट। यस Can you listen me? यस yes, Ma'am? yes, ma'am. यस मैम। Yes, please. Sure. Shweta ma'am, she's speaking so good. I'm listening her. बहुत अच्छा बोल रहे मैम, नमस्कार। बहुत से नहीं, मेरे पॉइंट्स को है। आप मतलब मैंने श्वेता को पहले ही बोला था कि मेरा एक्सपीरियंस है ये 20 इयर्स का बच्चों के साथ रहने की वजह से। मैंने कोई भी चाइल्ड साइकोलॉजी में ट्रेनिंग नहीं की है, पर मैंने 2007 में चाइल्ड साइकोलॉजी की बुक्स जो हैं वो एज अ टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाई हैं, बट मैंने कोई डिग्री नहीं ली थी। ये मेरा 20 इयर्स का जस्ट एक्सपीरियंस है। बिकॉज Very good. मैंने बोला ना, एज अ प्रिंसिपल हर दिन यही रहता था कि हमें बच्चों के साथ में रहना होता है, उनकी मानसिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है। और मैंने इसके लिए अभी भी पुणे में भी बहुत सारे कोर्सेज और कॉम्पिटिशन स्टार्ट इसीलिए करे हैं, जस्ट कि पेरेंट्स बच्चों को कितना समझ पाते हैं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप एज अ पेरेंट्स अपने, क्योंकि पहले के जमाने के पेरेंट्स का एक रहता था। मैं आपको और एग्जाम्पल यहाँ पे सबको देती हूँ पॉजिटिविटी वर्ड को समझाने के लिए, कि पहले के समय के पेरेंट्स का ऐसा होता था कि पल तो पहले के भी बच्चे जाते थे। बहुतों ने, आपने भी सुना होगा आपके मदर इन लॉ से स्पेशली, कि हमने भी तो पाले। बट तब और अब में फर्क ये है, वी हैव टू अगेन बीइंग पॉजिटिव फॉर दिस स्टेटमेंट दैट पहले 90% बच्चे ज्वाइंट फैमिली में थे, या जो मदर्स थी वो हाउस वाइफ थी, मतलब होम मेकर्स थी, वो वर्किंग नहीं थी। और अभी क्या हो गया है, मदर्स वर्किंग हो गई हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गई हैं, और भी बहुत जगह पर हो गई हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे कि तुम्हारी वजह से, मतलब बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपका बच्चा जो है, आपको लग रहा है कि वो आगे नहीं जा रहा है, या आपको कोई आकर बोल रहा है बच्चे तो हमने भी पाले, तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिविटी के साथ सोचना होगा कि रीजन क्या है ये जो चेंज आया है। पहले लेडीज के पास टाइम था, उनका लाइफस्टाइल अलग था, अब टाइम नहीं है, लाइफस्टाइल बदल चुका है। सो यहाँ पर भी वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव बिफोर अंडरस्टैंडिंग और बिफोर टेकिंग दिस स्टेटमेंट नेगेटिविटी, बल्कि उल्टा बी पॉजिटिव, उनको जाकर समझाइए अपने। यस मैम, बुलबुल मैम, यू वांट टू से समथिंग? हाँ प्लीज, मेरा एक क्वेश्चन है, कैन आई पुट? जी मैम। प्लीज मैम, प्लीज यस मैम। मैम। हाँ प्लीज। जैसे एज यू हैव योर लॉट ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस, आपको बहुत अधिक एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ आपसे एक अपना अपना शेयर करना चाहूंगी कि जैसे एक क्लासरूम है, मान लीजिए छोटे बच्चों के हम लोग डील कर रहे हैं, अभी हमारी वार्तालाप छोटे बच्चों के लिए हो रही है, ठीक है? तो जी। उसमें हर लेवल के बच्चे हैं, मतलब स्लो लर्नर्स भी है, ब्राइट है, शार्प है, सभी है वहां पर। ये आप समझ रहे होंगे जी मेरी बात को। तो बिल्कुल। एक टीचर के लिए, एक मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, 35 भी नहीं, आजकल तो ओवरलोडेड भी है, अदरवाइज 25 भी 40 स्टूडेंट्स की क्लास मैम, है। 40 42। हाँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 40 स्टूडेंट्स का क्लास है। तो थोड़ा सा सबको ये गाइड कीजिए मैम कि आपने एक्सपीरियंस है कि आप कैसे उस क्लास को टीचर्स को बताएं। 2015 तक, 2010 टू 2015 5 इयर्स एज अ प्रिंसिपल थी। तो जो प्री प्राइमरी सेक्शन था वहां पे हमारे यहाँ सेम यही था कि किसी क्लास में 20 बच्चे थे तो किसी में 40 थे। अभी वो सीबीएसई के नॉर्म्स एंड ऑल, नहीं भरो बच्चे 5, आपको वो बीपीएल के भी लेने हैं, 10 इसके भी लेने हैं, तो वो ना चाहते हुए भी 40 तक चला ही जाता है। वहां पर ये सेम प्रॉब्लम आता था कि अभी आप डिवाइड कैसे करो, क्योंकि आई कंप्लीटली अग्री कि बच्चे जो है ये 3 कैटेगरीज में, देखिए मैंने जितना ऑब्जर्व किया है मेरे एक्सपीरियंस से, बच्चे 3 कैटेगरीज में होते हैं। एक होते हैं एवरेज, जो मीडियम होते हैं, जो सब समझ लेते हैं। एक होते हैं स्लो लर्नर, जो चीज क्लास में टीचर 5 मिनट में बता देती है, वही बात वो उनको टीचर को 3 बार बतानी पड़ती है। और एक होते हैं फास्ट लर्नर,
इसकी वजह से जो फास्ट लर्नर होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है कि वो क्लास में पूरी तरीके से अटेंटिव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें तो वो बात 5 मिनट में समझ में आ गई है, अब टीचर वो दोबारा समझा रही है, अब वो एवरेज लर्नर को भी समझ में आ गई है। तो ये वाले बच्चे शैतान हो जाते थे, और जो स्लो लर्नर होते थे वो बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आती थी कि वो उसे टीचर बार बार समझाई जा रही है। या दूसरा एग्जांपल पहले मैं देती हूँ, राइटिंग प्रॉब्लम बहुत आता है, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा, फास्ट लर्नर ने फटाफट लिख दिया, एवरेज ने भी चलो टाइम लगाया, स्लो लर्नर के चक्कर में टीचर अगला चैप्टर ही नहीं पढ़ा पाई। अब जब मेरे सामने ये चैलेंज आया था, मैंने कैसे हैंडल किया था, आई डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं और आप पेरेंट ना होकर, क्योंकि यहाँ पर आपने मुझे एज अ स्कूल की तरफ से पूछा ये क्वेश्चन कि टीचर कैसे संभाले, तो मेरे लिए हमने जो किया था, हमने क्लास को तो जो नॉर्मल रेगुलर क्लास होती है वैसे ही चलाया। जो स्लो लर्नर बच्चे थे हमने उनको निकाला इन द सेंस ऑफ उनका देखा कि कितने बच्चे हैं। वो जो हमारे 10-15 बच्चे थे, हमने उन बच्चों के उनके पेरेंट्स के साथ इंडिविजुअल काउंसलिंग स्टार्ट करी। इंडिविजुअल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विद योर पेरेंट। उस पेरेंट के साथ आप काउंसलिंग करिए कि उस बच्चे का प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब हमने 3 साइड से उस बच्चे पे काम शुरू किया था और हमने 3 महीने में रिजल्ट्स देखे थे। इट्स अ वेरी टफ जॉब, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर इस पे टीचर और प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर को मिलकर काम करना पड़ता है। पहला आपको ये करना पड़ेगा कि स्लो लर्नर बच्चा स्लो क्यों है, टीचर को समझना पड़ेगा। अकेले टीचर समझ नहीं सकता, क्योंकि बच्चे का ज्यादातर टाइम तो घर पे बीतता है। आपको पेरेंट्स के साथ मिलकर मीटिंग करनी पड़ेगी और काउंसलिंग करनी पड़ेगी। वहां आपको बेसिक प्रॉब्लम समझ में आएगी कि वो स्लो लर्नर किसी बीमारी की वजह से है, कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर, या घर का माहौल कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। मान लीजिए अब अगर उसके साथ कोई बीमारी वाली प्रॉब्लम है, तो वो हम डॉक्टर से बात करके उसके मेडिसिन से स्टार्ट करेंगे, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिजिकल प्रॉब्लम है या मेंटल प्रॉब्लम है, कुछ भी एक्सवाइजेड हो सकता है, हम उस पर काम करेंगे। सेम टाइम पे हमने उन बच्चों की रेमेडियल क्लासेस के नाम से क्लासेस स्टार्ट करी थी। रेमेडियल क्लासेस में हम क्या करते थे कि उन्हीं बच्चों को एक्स्ट्रा आधा घंटा स्कूल में रोकते थे या इवनिंग क्लासेस उनकी लगवाते थे, और उसमें जो वो आज पूरा क्लास में पढ़ाया गया है केवल उन्हीं स्लो लर्नर बच्चों को पढ़ाया जाता था, जिससे कि उनको कल जब वो क्लास में आए तो वो जो फास्ट लर्नर है उनके बराबर पहुंच जाए। इससे हमारा फायदा ये होता है, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्कूल, अगर मैं बात करूं, कि हमारा जो क्लास का टाइम है, सब्जेक्ट जिसमें फास्ट लर्नर बच्चे इफेक्ट करते थे, एक तो फास्ट लर्नर बच्चों की एजुकेशन पे फर्क नहीं पड़ता, उनके पेरेंट्स भी खुश और बच्चे भी रेगुलर पढ़ रहे हैं, और फायदा ये होता था कि जो स्लो लर्नर बच्चे थे वो उसी टॉपिक को 2 बार पढ़ लेते थे। ये हो गए दो प्लान्स जो हम करते थे। तीसरा प्लान ये होता था कि जब हमने पेरेंट्स के साथ भी बात कर ली, हमने टीचर से भी बात कर ली, हमने उसका एक मंथली और वीकली चार्ट्स भी बनाना शुरू कर दिए कि पहले ये इतनी देर में लिख पाता था, अब ये इतनी देर में लिख पाता है, प्रॉपर शीट्स हम बनाते थे। उसके बाद में हम सेम टाइम पर उसको अपने एंड से एक्टिव बनाने के लिए स्टार्ट प्लेइंग मेथड, यहाँ पर ब्रेन वर्ल्ड में अगर कहूँ तो ये जो एक प्रॉब्लम है ना, ये सीबीएसई और आईसीएसई अलाउ नहीं करता, क्योंकि टाइम का शेड्यूल का प्रॉब्लम है। क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस तो इतना सारा है, टाइम जो एक पूरा साल होता है 365 डेज, उसमें से स्कूल के ऑफिशियल वर्किंग डेज मैक्सिमम 114 होते हैं। आप लोग जाके कैलकुलेट करिए, मैक्सिमम 114 वर्किंग डेज होते हैं जिस दिन आपका बच्चा स्कूल जाता है 365 डेज में से। तो 114 दिनों में जब आईसीएसई सीबीएसई ने, क्योंकि ये पुराने ब्रिटिश उस पे चला आ रहा है स्टडीज पर, हमारे इंडियंस ने इसको ढंग से कभी स्टडी करा ही नहीं है। तो जब आप सिलेबस देखोगे तो वो 114 दिनों के हिसाब से नहीं बनाया गया है, वो बनाया गया है साल के हिसाब से, 365 डेज के हिसाब से। स्कूल का सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ, जो 20 चैप्टर है, 20 ये है, 20 हिंदी, 20 इंग्लिश, और पढ़ाया कितने दिन जाता है, 114, मैक्सिमम 114 दिन। हर स्टेट के हिसाब से 1-2 छुट्टी कम ज्यादा है, तो शायद कहीं पर 116 या 120 होगा, कहीं पर 104 या 110 होगा, स्टेट वाइज है। जहां पर जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में छुट्टियां गणपति जी की ज्यादा होती है, शायद यहाँ का कम होगा, कई मध्य प्रदेश का कुछ अलग होगा, हरियाणा का कुछ अलग होगा। स्टेट वाइज 2-4 दिन आगे पीछे छुट्टियों का रहता है, बट 120 से ज्यादा कहीं नहीं पढ़ाया जाता। अब आप मुझे बताइए, आपने 1 साल का सिलेबस बना रखा है और 120 दिन में आप उसे पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर फास्ट लर्नर बच्चे तो कवर कर लेते हैं बुलबुल मैम, लेकिन जो स्लो लर्नर होते हैं वहां पर हम टीचर्स वहां पे हार जाते थे। वहां पे हमने ये प्लान करा कि हम उन्हीं बच्चों को रेमेडियल क्लासेस में डाल दिया, और हम उन्हीं बच्चों को एक ही दिन में 2 बार पढ़ाते थे, बट फास्ट लर्नर को अलग रखकर। वो अलग है ना, तो उनको इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये हमने 3 तरीके से काम करना शुरू करा। पहला, पेरेंट्स और टीचर के साथ मिलकर मीटिंग्स करे, सेशंस करे, उनके घर की प्रॉब्लम अगर है तो वो समझी, पेरेंट्स को समझाया कि घर में आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए, टीचर को समझाया आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए। दूसरा, हमने क्लास के बाद उनकी क्लास लेना शुरू कर दी, उसमें उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया, एक्स्ट्रा उन्हें क्लासेस देना शुरू कर दिए। और तीसरा, हमने बच्चों के साथ एक्टिविटीज पे काम करना शुरू कर दिया।
ज्यादातर आप एक चीज देखेंगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्लो लर्नर बच्चे वो होते हैं जो टीचर कहती है कि थ्योरी में लिख नहीं पाते। ज्यादातर स्लो लर्नर बच्चे नॉर्मल लाइफ में जब आप उनसे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कराते हैं या प्रैक्टिकल एक्टिविटी कराते हैं, वो बिल्कुल फास्ट लर्नर बच्चे की तरह एक एवरेज स्टूडेंट में काउंट किए जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट की, यस मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मैम मेरा क्वेश्चन है कि क्लासरूम अरेंजमेंट सबको Yes, ma'am. लेके चल रहा है, यस यू नो, यस और जब सारे बच्चे एक ही साथ बैठे हैं, एक ही क्लासरूम में है, तो हाउ विल यू जी। मैनेज दैट क्लासरूम? वो उस जब क्लास हम को इस मैनेज तरीके से, करना, जिसमें तीनों प्रकार के बच्चे हैं, स्लो लर्नर भी हाँ, हैं, एवरेज लर्नर भी और फास्ट लर्नर यस भी है। यस यस, तो इस तरीके के क्लास को जब हम अटेंड करते हैं, मैं जब इस तरीके की क्लासेस को सेशन करती थी, तो हमारा फोकस तीनों बच्चों पर, ये इसके लिए बहुत एक्सपर्ट टीचर की हमें जरूरत पड़ती है। और ऐसे टीचर हम इस तरीके की क्लासेस में टीचर्स को जब देते हैं, तो हम टीचर्स इस तरीके से देते हैं जिसको पहले से ये पता होता है कि कौन बच्चा फास्ट लर्नर है, कौन सा एवरेज है और कौन सा स्लो लर्नर है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक टीचर ने, मैं आपको एक एग्जाम्पल ऐसे दे सकती हूँ, जब मैंने एक स्टोरी सुनाई, ठीक है, अब वो स्टोरी को सबने इक्वली सुन ली, स्टोरी सभी बच्चों ने इक्वली सुन ली है, हमें पता कैसे चलेगा कि वो बच्चा लर्नर तेज है? जब हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और वो आंसर करेंगे। यहाँ पर हम रूल स्टार्ट किया था कि जो स्लो लर्नर बच्चे होते थे, उन्हें हम एक बच्चे को फास्ट लर्नर बच्चे के साथ बैठाते थे, ठीक है, और फास्ट लर्नर बच्चे से ये कहते थे कि इससे हेल्प करो। इससे उनके अंदर शेयरिंग की हैबिट बढ़ती थी, हेल्प करने की हैबिट बढ़ती थी। जो लर्नर स्लो लर्नर बच्चा होता था, उसको हम डीमोटिवेट नहीं करते थे, हम उसको ये कहते थे कि देखो ये अगर कर सकता है तो तुम इससे अच्छा कर सकते हो, नाउ यू हैव टू स्टार्ट। यस मैम, कैन आई कंटिन्यू? मैं सबको बोलना चाहती हूँ, प्लीज रीज्वाइन कर लीजिए, सेशन का शायद एक मिनट बचा है, प्लीज रीज्वाइन कर लीजिए, अब खत्म होता है, आप प्लीज कंटिन्यू रखिए एंड रीज्वाइन कर लीजिएगा सेशन, सभी को मैं बोल रही हूँ। थैंक यू। यस मैम, अमिता मैम इज प्लीज कंटिन्यू मैम। यस मैम, यस मैम, बुलबुल मैम। Yes, please. There is one word, heterogeneous group. Then is one word, heterogeneous group. Fine. जो मैं कहना चाहूंगी, अब मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी, क्लासरूम जो है वो सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि बच्चे को हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये बच्चा वीक है, क्योंकि घर में भी वो पेरेंट्स भी उसको कह सकते हैं आप पढ़ नहीं रहे, तो बच्चा स्कूल में भी टीचर यही सोचेगा यदि आप पढ़ नहीं रहे, लेकिन बट वी कैन नॉट शो इट, हम कह ही नहीं सकते उसको कि ये बच्चा जो है वीक है, बच्चा वीक होता ही नहीं है, उसके अंदर एक पार्ट कमजोर है तो दूसरा पार्ट उसका एक्सेल है, ठीक है, सो वी हैव टू इन दैट, या तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग कि क्लासरूम का जो सिस्टम है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सबसे पहली जरूरत चीज है, दैट इज हेटेरोजेनियस ग्रुप, दैट इज इन राउंड शेप, क्योंकि बैठाने का है ताकि बच्चा उस ग्रुप में जो है बहुत कुछ सीख लेता है। I request everyone, please rejoin the session, and we will continue. Same link and same password. Same link पर rejoin करिए, please. Okay.